میں سب کو ویلکم کرتا ہوں اکیڈمی آف فیملی فزیشین کی اس پروقار تقریب میں. آپ کے آنے سے یقیناً اس کی رونق جو ہے وہ دوبالا نہیں کئی بالا ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے چیئرز کو جو ہے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر تشریف لائے اور بیٹھے ہیں, اور انہوں نے ڈاکٹر طارق میاں صاحب کی, پریزیڈنٹ صاحب کی یہ موٹیویشن تھی, آئیڈیا تھا, اور یہ ہر سال ہم مناتے ہیں اس دن کو. تو اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی مناتے رہیں گے. تو عبد الرحمان صاحب فنانس سیکرٹری سب سے رائٹ سائڈ پہ, میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے چیف کوآرڈینیٹر. طارق محمود میاں صاحب, ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن اور ہماری لیڈی ڈاکٹرز کی جیم ڈاکٹر ناہید ندیم. ان سب کو, تمام دوستوں کو اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ویلکم کرتے ہیں اگین اینڈ اگین, اور بہت مشکور ہیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید صاحب نے آپ کا تمام دوستوں کا بڑا شکریہ ادا کیا. بیسیکلی اس دفعہ کا جو یوم آزادی ہے وہ دوسرے جو ہم ہمیشہ مناتے رہے ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہے. ڈیفرنٹ اس سینس میں کہ پاکستان پچھلے کچھ عرصہ سے ایک ڈپریشن کا ماحول تھا, اور ہم سمجھ چکے تھے کہ پاکستان شاید نیچے جا رہا ہے, اور ہماری تمہاری قوم کے اوپر ایک مایوسی چھائی ہوئی تھی. اور آپ اندازہ کریں کہ ایون ہمارے جو دوست ممالک تھے وہ بھی پاکستان کو بڑا انڈر ریٹ کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جب احسان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جس قوم کو اوپر لانا چاہتے ہیں تو اسے موقع خود انڈیا نے دے دیا. انہوں نے ایک چال چلی, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بہتر چال چلنے والا ہوں. اور انہوں نے وہ پہلگام کا جو واقعہ تھا اس کو ایک بنیاد بنا کے انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو ختم کیا جائے گا, پاکستان کو ہم گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے. لیکن یہ ہے کہ, اور مودی کا تھا کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمارے لیے, اور ہماری قوم کو بھی یہ یقین نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اٹھانا تھا. اور پاکستان نے, میں اگلے دن ایک جو ہمارے ایئر چیف تھے ان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا بڑا زبردست. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 3 گھنٹے اور شاید کچھ منٹ میں نہ صرف انڈیا کو ناکو چنے چبوائے بلکہ پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے. السلام علیکم, میرا نام دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. On this day, we celebrate Pakistan's independence. They have gone through many circumstances. To have a separate homeland. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Malik Yawmiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamu alaikum. My name is Iman Naveed, and as you know that we are gathered here to celebrate the 78th independence of our holy land Pakistan. समझो ना ये आसान मिला है, समझो ना ये आसान मिला है, देके हजारों जान मिला है, खाक में पहले लहू मिला था, तब जाके पाकिस्तान मिला है. एक न नगमा सारे गाएंगे दिल दिल पाकिस्तान. यही लगा दो. चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. पाकिस्तान के बारे में आज बच्चों मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये मुल्क बड़ी मुश्किलों से हासिल किया गया है, बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई इसके लिए, तो आपने इसको संभाल के रखना है, इसकी इज़्ज़त करनी है और ईमानदारी से चलना है. 1947 में हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी और जिस मकसद के लिए कुर्बानियाँ दी, आज हम वो मकसद भूल चुके. आज हम फिर उसी डंडे पे हैं जिस डंडे को हमने तोड़ा था. खुदारा अपने मुल्क को बचाएंगे और अपने मुल्क की बका उसी में है जिससे ये मुल्क लिया था. मैं नई जनरेशन को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, छोटा सा एक. बीइंग आई सर्व इन द आर्मी, तो मैं आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, तो मेरे वालिद साहब भी ही इज़ आल्सो डॉक्टर, तो उनकी वर्ल्ड पैथोलॉजी, डॉक्टर जानते हैं सारे, पैथोलॉजी की बड़ी अच्छी बुक थी जो कि इम्पोर्टेड एडिशन था उनके पास. तो मैं उनके पास जब मैंने लेके गया तो उसके ऊपर उन्होंने शुरू में स्टार्ट में लिखा हुआ था, सक्सेस कम्स बिफोर वर्क, इट इज़ ओनली इन द डिक्शनरी. नीचे कायदे आज़म मेरे वालिद साहब ने लिखा हुआ था. तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जो नई जनरेशन ना शॉर्टकट्स चाहती है, शॉर्टकट से कभी सक्सेस नहीं आएगी. इसलिए मेहनत करें, क्योंकि सक्सेस पहले आती है, लेकिन बाद में वर्क आता है, डब्ल्यू बाद में, लेकिन एक्चुअल लाइफ में डब्ल्यू पहले बाद में आती है. सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद. आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से भी और वैसे भी जो उन्होंने बोला है उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम बच्चों को. हम पाकिस्तान की हर बात के ऊपर नुक्स निकालते हैं कि ये सड़क ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, तो हमें अपनी एक्टिविटी, अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. हमें हमेशा पॉजिटिव की तरफ सोचना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले आप सबको ये जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो, और ख़ास तौर पर पूरी फैमिली को, उनका डॉक्टर तारिक मियाँ का पूरी फैमिली का शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं ख़ास तौर पे कि आपने हमें इनवाइट किया कि हम आपके साथ आ सकें. आज हम ख़ास आपके लिए 2 चीज़ें लेकर आए. एक हमारे सीनियर डॉक्टर फरहान ईसा सर जानते हैं, तो उन्होंने सब वहाँ बच्चों और फैमिलीज़ के लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए थे बच्चों के लिए, तो वो हम आपके लिए लेकर आए हैं. मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. मेरी मुलाकात हुई थी मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद से. तो उन्होंने मुझे कहा था कि कोई भी मुल्क अगर ये 4 चीज़ें जिस मुल्क के पास भी हों वो तरक्की कर सकता है, और वो चारों चीज़ें पाकिस्तान के पास हैं. एक समुंदर और उसमें स्पेशली डीप सी, दूसरा मौसमों की जो वैरायटी है वो होनी चाहिए, और तीसरा ज़मीन की ज़रखेज़ी और ज़ेरे ज़मीन जो है वो आपके मादनियात. तो ये एक अल्लाह का करम है. मुझे उन्होंने कहा था कि भाई मलेशिया के पास इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने तरक्की की, और आपके पास ये चारों चीज़ें हैं, तो आपको हर सूरत तरक्की करनी चाहिए. क्योंकि मैं सर यही कहूँगा कि आज़ादी की कदर करनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ करें. हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं. जब आप बाहर जाते हो तो तब आपको अपने मुल्क की कदर व कीमत का एहसास होता है कि हमारे लिए कितना कीमती है.
मैंने 5 साल सऊदीया में गुजारे हैं, तो हर दिन मुझे अपना मुल्क याद आता था। यकीन है तुम अमल पे है मोहब्बत मान है आलम जहाज जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीर है और तुम की है। मेहरबानी। जो कुछ हमारे पास है ना, वो सब कुछ पाकिस्तान ने दिया। हमने ज़ीरो से शुरू किया था, अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है कि हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते, जितना करें उतना थोड़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने सिस्टम पर, अपनी चीज़ों पर। मेरा ख्याल है कि हम पॉजिटिव अगर देखें तो हमारे पास बहुत कुछ है कि मैंने ये देखना कि मैंने क्या करना है इस मुल्क के लिए। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और ये तो वही लोग देख सकते हैं जिनके हमें तो मिल गई, लेकिन वो लोग जो हैं वो मजलूम लोग पिस रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूर दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, लेट्स गियर अप फॉर द क्विज। पाकिस्तान के कौमी शायर कौन हैं? ये बच्चे ने नाम ले लिया। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे?